Welcome back. Last video के अंदर in our previous video we will discuss about a CRUD web app in which we have one Google Sheet, and inside our Google Sheet we have different multiple sheets, and we perform the CRUD the edit or delete options. You will see in last video we will see the multi-sheet dynamic CRUD web app where we have only one Google Sheets, and inside our Google Sheet we have multiple sheets, like multiple sheets, and we implement a CRUD web app dynamically on that. For example, you will see in our database, the database is directly connected to form, and you will see here. So when I want to edit the data in our database, you will see here I just click on the edit button, and I just want to change the ID the 3224083, and when I click on this submit, it will update it. So यहाँ पर ये जो डाटा है उसने हमें यहाँ पर ये देखिए अपडेट करके दे दिया. ऑन द मेन टाइम मैंने लास्ट वीडियो में देखा कि जब मुझे डेटाबेस 1 के अंदर कोई चीज को एडिट करना था या कोई चीज को ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, ऐड कोड के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर 323 लिखा और यहाँ पर मैंने अली लिख दिया, and then I click on the submit. When I click on the submit, the data will be added in our database too. You will see here, and if I want to edit this data, I just simply click on the edit button, and you will see the Ali Ahmed. Now I will click on submit. The data will be updated on this sheet. You will see here. Okay, so यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा. So now in this video we will improve our web app and convert it to multiple Google Sheets and multi-sheet CRUD sport. What I mean to say, I want to say that मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास we have a folder in our Google Drive, and inside our folder we have 9, 10, 11, whatever amount of the Google Sheets, and I want to implement the CRUD functionalities on all of them without having the knowledge of coding. So how it's possible, sir? How it's possible? So we take a look on here. So you will see. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस थी, जिसके अंदर हमने अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होता था, और अपना फॉर्म क्यों सेलेक्ट करना होता था, डेटाबेस 1 का जो हमने फॉर्म बनाया था. यहाँ पर यू विल सी वी क्रिएटेड अ फॉर्म फॉर डेटाबेस 1 फ्रॉम हियर एंड डिफाइंड इट्स ऑल एंटिटीज हियर, एंड इट्स डायरेक्टली implement on database sheet. So now in today's video I have another sheet. For example, the sheet, this is a other sheet, and here I will have a form 1 and database 1, और यहाँ पर मेरे पास एक form 1 और database 1 है. अब मैं यहाँ पर भी उसी I want to implement the CRUD web app CRUD operations from here on that sheet, on this sheet. So what I need to just to do, I just need to go my index file and just scroll down, and here I just need to enter the sheet ID here. For example, I just click on the sheet 2. In the sheet 2, I just have only form 1 and database 1. I have only form 1 and database 1. मेरे पास एक ही database है. क्या है? database 1, और उसका जो फॉर्म बनाया वो हमने फॉर्म 1 के नाम से लिखा. और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर जिस भी शीट के अंदर फॉर्म का पहला कीवर्ड होगा वो फॉर्म की ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जिस भी कीवर्ड के अंदर डाटा, जिस भी शीट के डाटाबेस का पहला वर्ड, शीट का पहला वर्ड डाटाबेस होगा, वो यहाँ पर डाटाबेस का आ जाएगा. आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश. द इन एनी शीट, our Google Sheet, any sheet started with form, this word form automatically comes in forms drop down. And if any sheets found database, the sheet automatically comes in database. So you will see अब हमारे पास यहाँ पर, now you can see we have the sheet 2, we have the sheet 2 here, and we have the sheet 2, and in our sheet 2 I just only have the form 1 and database 1, mean one CRUD operations, one sheet for CRUD operation. I want to add one more. So now I just click on plus button and then plus. अब यहाँ पर I need form which filters the sheet. You will see. तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, now we want to create one more database for our sheet 2 CRUD performance. So we just give him a name, form 2.
first keyword is must be form because we want this sheet in our form drop down. And now we are renaming this sheet number. First keyword is the database. Why it's database? Because our code is filter. If any sheet's first keyword is database, it automatically comes in a database drop down here. So यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने database, we rename this with database too, and I want to add some data here exactly same like that. And when I going to paste it here, and you will see the data is also here, and I just entered the data. Now I just need to refresh my data. अब यहाँ पर मुझे अपनी वेब ऐप को रिफ्रेश करने की जरूरत है. Now I am going to select. You will see the sheet 1 is selected. The sheet 1 is this. The sheet 1 must have the form 1, form 2, database 1, 3 form and 3 databases for CRUD operations, and we can perform CRUD operations on all of them. And I just click on here the sheet 1, and you will see the form 1 and form 2, and here you will see also the database 1 and the database 2, and you can see we can apply it easily CRUD on data. Now I am going to select the sheet 2. When I am going to select the sheet 2, you will see the form 1, form 2, 2 forms and 2 database. Now we can see the 2 forms and 2 databases here, and you can rename, you can give him a name as per your need. You can give him a name, form HR department, database HR department. Okay, you can give any kind of name after the database keyword. Okay, if you want that some sheet must not be shown in our CRUD web app, you just simply given him a name like sheet 5. You must given him a name. You don't change the sheet. आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई sheet आपके database के अंदर show ना हो, CRUD operations perform ना हो, तो उसका आपने जो नेम है वो अपनी मर्जी से लिख देना है. याद रहे, in that sheet the form and the database name not come. उसके अंदर फॉर्म और डेटाबेस का नाम नहीं आना चाहिए. अब हमने यहाँ पर एक शीट 5 बनाई, ये अब यहाँ पर नहीं आएगा. फॉर्म HR एंड डेटाबेस HR. अब हमने फॉर्म HR का बनाया, डेटाबेस HR का बनाया, और यहाँ से हम इसको एडिट के ऊपर क्लिक करके अपने डाटे को यहाँ से इजीली अपडेशन भी कर सकते हैं. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस HR के अंदर हमने अपने डाटा को यहाँ पर अपडेट भी कर दिया है, लेकिन शीट 5 वहाँ पर शो नहीं हो रही. अगर शीट 5 को वहाँ पर शो करना है तो इस शीट के नेम के अंदर इन दैट शीट नेम मस्ट हैव 2 कीवर्ड्स, फॉर्म फॉर फॉर्म ड्रॉप डाउन एंड डेटाबेस for database drop down. Okay, so यहाँ पर, so in this way you can hide any sheet from the CRUD operations. Okay, we are going to delete this. अब मैंने यहाँ पर फॉर्म 2 बनाया था. अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, शीट 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाली. अब मैंने यहाँ पर I have selected the sheet 2. Now I am just going to select the form 2. You can see here we added the form 2 here. हमने यहाँ पर form 2 को ऐड किया था, और यहाँ पर हमने डेटाबेस 2 को हमने यहाँ पर ऐड किया. ठीक है, डेटाबेस 2 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. अब यहाँ पर हमने डेटाबेस 2 को अपडेट करना है. सर, डेटाबेस 2 को हमने यहाँ पर अपडेट करना है. मैं इसको 3224 करना चाहता हूँ. मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको सेम 3224 कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा. इफ आई वांट टू ऐड, अगर मैं इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह से फोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं फोन ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे नंबर करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर मैं इसे नंबर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं नंबर ले आऊंगा, यानी कि यहाँ पर मैं इसे नंबर ले आऊंगा, और यहाँ पर मैं अब इसको 2-3 कर दूंगा. और अब मैं जैसे ही फॉर्म 2 के ऊपर जाता हूँ, जैसे कि मैं फॉर्म HR के ऊपर जाकर दोबारा से फॉर्म 2 के ऊपर आता हूँ और ऐड रिकॉर्ड के ऊपर करता हूँ, यू विल सी द फॉर्म इज हेयर एंड आई वांट टू एडिट, आई वांट टू ऐड 1 एंट्री एंड द नेम इज द रामीज एंड द फोन नंबर इज 32222. एंड मैंने क्लिक ऑन द सबमिट. जब मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, मेरा डाटा यहाँ पर ये देखिए आ चुका है, और जब मैं इसे एडिट के ऊपर क्लिक करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इजीली अपने डाटा को फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकता हूँ इजीली. सो अगर हमने कोई एक और शीट ऐड करनी है, लेट्स सपोज हमने शीट नंबर 3 ऐड करना है, एक अदर नई शीट बनाएंगे. उस शीट को बनाकर हमने क्या करना है, उसकी आईडी को सिंपली कॉपी करना है,
अपने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आ जाना है, इस वाली लाइन को हमने कॉपी करना है और यहाँ पर हमने लाकर इसको पेस्ट करना है और अपनी शीट आईडी को हमने यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहां पर आप शीट जो भी आपने आईडी रखी है जिस शीट की, उसको अपनी मर्जी का नेम दे सकते हैं। मैं यहां पर शीट 3 दूंगा, आपने एचआर है, एडमिशन है, जो भी है वो आप अपनी मर्जी से इसको दे सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने लगी। और याद रहे कि ऐप स्क्रिप्ट का कोड सिर्फ हमने एक ही शीट के अंदर लिखना है, बल्कि आप गूगल शीट का यूज भी ना करें। अगर आपने इस वेब ऐप को चलाना है, आप सिंपली राइट क्लिक करके मोर के ऊपर खाली गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर भी इस ऐप को डिप्लॉय कर लेंगे। इट विल वर्क फॉर यू, ये आपके लिए वर्क करेगा। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस कोड इन योर Excel sheet, in your Google sheet, you just create a separate Google app script project for this. So यहाँ पर हमने अब शीट 3 को ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसको कर दिया सर रिफ्रेश। शीट 3 के अंदर मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ जल्दी से फॉर्म के नाम से, और इसको मैं डेटाबेस 1 के साथ, इसको मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सर डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर मैं सिर्फ सर सिंपली आईडी लेना चाहता हूँ, और आईडी ही मैं लेना चाहता हूँ, किस में लेना चाहता हूँ, नंबर में लेना चाहता हूँ। ठीक है, नंबर में लेना चाहता हूँ आईडी को मैं यहाँ पर सर, और डेटाबेस के अंदर जाकर मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, यानी कि 322344 मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए। और अब जैसे ही मैं अपनी वेब ऐप को यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा हमारे पास शीट 3 के अंदर जाएंगे, हमारे पास फॉर्म आया, डेटाबेस 1 आया, फॉर्म डेटाबेस 1। अब हमारे पास 322344 आ गया। एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इजीली इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया, ये जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका। सो अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इसको डिप्लॉय करने का तरीका ओल्ड वीडियो के अंदर बताया है, किस तरह से इसको डिप्लॉय करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके सर।